Okay, Kabir, weaving a divine fabric. Yes, Beta Kabir was one of the most influential saints of the 15th, 16th century, or you can say the Bhakti movement. He settled near the city of Banaras and was brought up in a Muslim family. Okay, he wrote a vast collection of verses called Sakhis and Padas. ठीक है, पद बोलते थे उनको या साखी बोलते. Some of his verses were later collected and preserved in Guru Granth Sahib जी also. ठीक है, उनकी कुछ चीजें इवन गुरु ग्रंथ साहिब में भी कोट करी गई हैं, उनके जो कुछ वर्सेस हैं. Kabir completely opposed the idea of casteism prevalent in the society and also rejected the idea of religious tradition of all religions. ठीक है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, हर उसके जो आपके रिचुअल्स होते थे, ठीक है, उन सबको उन्होंने हमेशा ही क्रिटिसाइज करा है. ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दोज थिंग्स. Kabir had completely rejected the idea of religious traditions. He criticized the caste system and dominance of priestly classes, है ना, जैसे आपके उसमें काजी या मौलानाज होते हैं, है ना, और उधर ये ब्राह्मण्स पंडित्स जो होते हैं, ठीक है, उन्होंने उन लोगों के क्रिटिसाइज किया है और वो कास्ट सिस्टम के टोटली अगेंस्ट थे. He was of the view that there is only one God and he is supreme. जैसे हम सब लोग ही बार बार ये बात कहते हैं, सुनते हैं क्या, कि जो है अल्टीमेटली गॉड इज वन. ठीक है, वो हमारा उनको अटेन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है, पर एक्चुअल में जो हमारा गॉड है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड है, वो एक ही हैं. उनका कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हम कर सकते हैं कि ही इज बेटर और दैट वन इज बेटर. हिज डेट ऑफ बर्थ है ना इज सब्जेक्ट टू अनसर्टेनिटी एंड कुछ ऐसा माना जाता है कि द मोस्ट प्रोबेबल डेट इज टेकन एज 1398. ये माना जाता है कि ही was brought up, sorry, he was born around this time. बहुत से लोग बहुत जैसे हमने बताया था ना, हिंदू फैमिली, बहुत से लोग कहते हैं कि ही वॉज born in the Hindu family and but brought up by a Muslim couple and their names were Neeru and Nema. And being a son of a poor family, he could not receive any formal education. ठीक है, but he was very much एनलाइटेंड फ्रॉम इनसाइड. ठीक है, उनको आत्मिक ज्ञान बहुत था अंदर से, स्पिरिचुअलिटी और इन सब की बहुत ज्यादा नॉलेज. द रामानंद was the guru of Kabir and he had deep influence on his life, and under his influence only he chose the path of becoming a saint. ठीक है, उनसे इन्फ्लुएंस होके ही उन्होंने सेंट बनने के लिए सोचा. Throughout his life, Kabir did not use the word guru for any individual. They were contemporary to each other, but it is not acceptable fact. Kabir died in 1518 at Maghar in Gorakhpur. ठीक है? The followers of Kabir organized themselves as Kabir Panthis और उनको जो फॉलो करने वाले लोग थे उनको कबीर पंथीस के नाम से जाना गया आफ्टर हिज डेथ. और उनका जो बर्थ का और डेथ का इशू है वो एक कंट्रोवर्सी ही बना रहा.
और उसका कोई प्रॉपर हम विद फैक्ट्स कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं मिल पाया कि वेयर ही टुक बर्थ। ठीक है, उनको एक ग्रेटेस्ट भक्ति पोएट की ऑफ इंडिया की तरह माना जाता है। And it is said about him that no Indian saint has displayed such strength of language, such vitality, down to earth assertion of facts as Kabir. Kabir preached his messages in Hindi. ठीक है, and three books which were compiled after his death were your Kabir Bijak, Kabir Granthavali, and some Adi Granth Sahib. Kabir Bijak is compiled by his followers known as Kabir Panthi, and it is preserved by them in Varanasi, and Kabir Granthavali is associated with the Dadu Panthis of Rajasthan. And besides this, उनकी बहुत सारी जो टीचिंग्स हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी आती हैं। कबीर ट्राइड टू यूज द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन, और जैसे हमने बताया कि वो हिंदी का बहुत ज्यादा यूज करते थे। And everyone could understand him. All his compositions are composed by his followers. His poetry is preserved in several languages and dialects. ठीक है, उनकी जो ये पोइट्री है और लैंग्वेजेस में भी उनको लिखा गया है, ट्रांसलेट किया गया है। They are composed in Sant Bhasha. Others were written in Ulat Basi in such a way that every day meaning are inverted. उलट बासी मीन्स जैसे हम ना टॉन्ट करते हैं किसी चीज पर। ठीक है, टॉन्टिंग वे में उन्होंने लिखा है कि वो बोलते कुछ है उसमें और उसका मीनिंग कुछ और निकल करके आता है। राइट, Kabir advocated the unity of one God. According to him, Allah, Ram, Rahim, etc. are different names of the same God who is Almighty. He resides in the hearts of the devotees. कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर ही रहता है और हम उसको कहाँ ढूंढते रहते हैं? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। ठीक है, ही इज फॉर्मलेस एंड इमॉर्टल, है ना, उनका उनकी कोई शेप नहीं है, निरंकार भक्ति के को में बिलीव करते थे, उनका कोई शेप नहीं। ठीक है, एंड ही इज present everywhere in the universe. Kabir used a wide range to describe the ultimate reality. He used the Vedic traditions such as Brahman, Atman, Tarankar, Daksh, and also the terms drawn from yogic traditions such as Shabad and Shunya. ठीक है, ये सारी टर्म्स उन्होंने गॉड को डिपिक्ट करने के लिए यूज करी हैं। और when we come to the Muslims, for them he has used the words Allah, Khuda, Hajrat and P. Okay, he was a निर्गुणा poet. ठीक है, सगुना का मतलब होता है कि हम किसी पर्टिकुलर शेप में मान करके गॉड को कि गॉड का ये फॉर्म है, उसमें उनकी प्रेयर करते। This is all about him, children. एंड उनका डेथ के बाद का भी है थोड़ा सा।
is. Kabir was and is to the present source of inspiration for everyone. ओके चलिए। और ये कहते हैं कि उनकी डेथ के बाद ना जो मुस्लिम लोग थे वो तो कहने लगे कि उनको बरी करा जाएगा, राइट? एंड द हिंदी पीपल वांटेड देम टू क्रिमिनेट, ठीक है। एंड ये कहते हैं कि और जब उनका डेड बॉडी के ऊपर से चादर हटाया गया तो दे फाउंड सिंपली फ्लावर्स देयर, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब उन्होंने ना, उनके लिए था कि ना मैं हिंदू हूँ ना मुस्लिम हूँ, आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। तो कोई ना उनको बरी कर पाया ना ही उनको उनका क्रिमिनेशन हो पाया, ठीक है। उन्होंने गुरु सदगुरु ये चीजें यूज करी हैं, जैसे उनके दोहे भी हैं ना। उन्होंने गुरु को गॉड से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है ना। गुरु गोविंद दो ही दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया, है ना। तो मीन्स उनकी लाइफ में गुरु की इम्पोर्टेंस गॉड से भी ज्यादा मानेंगे। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन, Baba Guru Nanak and the Sacred Word. Baba Guru Nanak was born in a Hindu merchant family in a village called Nankana Sahib near the river Ravi and in the predominantly Muslim Punjab. Okay? He studied and trained to be an accountant. Okay? He was married at young age but spent most of his time among the Sufis and Bhaktas. He also traveled widely. Okay? Though he got the good education to be an accountant, but वो इस जॉब को ना करके अपना टाइम सूफीज संस इन सब के साथ पास करते रहते थे एंड he used to move here and there with them, and whatever he has written they are also in form of hymns. जो उनकी टीचिंग्स हैं वो आपकी हिम्स की फॉर्म में है, and he has also insisted that his followers should live in their houses and should try to attain salvation by giving them duty in a proper way. There is no need to go to the forest to attain salvation. ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी ड्यूटी भी ऑनेस्टली कर रहे हैं, है ना, कहते हैं ना कि हमारे जो कर्म है वही आगे आते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा सबसे बड़ा वे है कि हमें सैल्वेशन, मोक्ष या मुक्ति मिल जाए। ओके, एंड उनके जो टीचिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो ये सजेस्ट करती हैं दैट ही एडवोकेटेड ए फॉर्म ऑफ निर्गुणा भक्ति। ठीक है, शेपलेस मानते हैं वो गॉड को, उनकी कोई फॉर्म नहीं है, कोई शेप नहीं है। ओके, एंड he also did not believe in the caste system. He was against this caste system. He rejected sacrifices, ritual baths, image worship, austerities, and scriptures of both Hindus and Muslims. For Guru Nanak,
the absolute or the Rab, है ना, God means, had no gender or form. ठीक है, इसीलिए वो जैसे बताया ना कि निर्गुणा भक्ति में बिलीव करते हैं, उन्होंने कहा कि उनकी ना कोई फॉर्म है और ना ही उनका कोई जेंडर है. He proposed a simple way to connect to the divine by remembering and repeating the divine name. ठीक है, जिसको उन्होंने कहा कि अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, है ना, तो वही सबसे बढ़िया तरीका है भगवान के पास पहुंचने का. उनके जो आइडियाज हैं वो हिम्स शब्द पंजाबी में उस फॉर्म में उन्होंने अपने को लोगों तक पहुंचाया है. And he has also used the regional language so that people could understand him. और जो उनके ये टीचिंग्स हैं, कंपोजिशंस हैं, ठीक है, they were sung in various ragas. उनको बहुत सारे रागास, राग तो आप लोग बहुत से लोगों के पास म्यूजिक है ही, है ना, जानते हैं ना व्हाट आर रागास. एंड बाबा गुरु नानक organized his followers into a community जिसको कि संगत बोला जाता है. और वहां पर सब लोग एक साथ मिलकर के रेसिटेशन करते थे, शब्द जो होता था उसका रेसिटेशन करते थे. एंड ही अपॉइंटेड वन ऑफ हिज डिसिपल अंगद टू सक्सीड हिम एज द परसेप्टर. मतलब उन्होंने पहले ही बता दिया था कि उनके बाद उनका सक्सेसर कौन होगा. एंड दिस प्रैक्टिस ऑफ सक्सेशन वाज फॉलोड नियरली about 200 years. Though Baba Guru Nanak himself do not want to uh, establish a new religion, but after his death, है ना, उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने इन सब चीज़ों को कंसोलिडेट किया और उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, है ना, इट वाज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज. The fifth preceptor of Guru Arjan compiled बाबा गुरु नानक हिम्स. ठीक है, जो उनके फिफ्थ सक्सेसर थे उन्होंने बाबा गुरु नानक की जो भी चीजें आपके हिम्स थे उन सबको कंपाइल किया. एंड दोज ऑफ हिज फोर सक्सेसर्स, और उनके पहले के जो और चार सक्सेसर्स हुए हैं गुरु नानक जी के उन सबको कंपाइल किया है. एंड अदर रिलीजियस पोएट्स लाइक बाबा फरीद, रविदास, कबीर, है ना, आदि ग्रंथ साहिब में उनको उन्होंने कंपाइल करके लिया हुआ है. मतलब उन सब की अपने पुराने पांचों गुरु के, चारों गुरु के अलावा, ठीक है, उन्होंने बाबा फरीद, रविदास, कबीर, इन सब की भी बहुत सारी वर्सेस को आदि ग्रंथ साहिब में कंपाइल किया है. और इनकी जो हिम्स होती हैं इनको गुरुबानी बोला जाता है. एंड गुरु गोबिंद सिंह included the compositions of the ninth Guru, Guru Tegh Bahadur, and this scripture was called as Guru Granth Sahib. एंड गुरु गोबिंद सिंह ने ही आपके खालसा पंथ का भी इस्टेब्लिशमेंट किया था. एंड उसके अकॉर्डिंग उनको ये फाइव चीज़ें अपने पास, फाइव सिंबल्स यूज करने होते हैं. टू फाइंड फाइव सिंबल्स एज अनकट हेयर, डैगर, a pair of shorts, a comb, and a steel bangle. And under Guru Gobind Singh only, जो आपका ये कम्युनिटी है, it was consolidated as a socio-religious and military force. खालसा पंथ जो है ना, Guru Nanak opposed the caste system prevalent in the society and gave the message that all caste comparisons are baseless and we all are the same. He asked his followers to
अडॉप्ट प्रोडक्टिव एंड यूजफुल ऑक्यूपेशंस। ठीक है, जैसे हमने बताया ना कि वो कर्म में बिलीव करते थे कि आप घर पे रह करके भी अगर आप अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहे हो, जो भी आपकी ड्यूटीज हैं, तो यू कैन अटेन गॉड एंड एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू द जनरल फंड्स ऑफ द कम्युनिटी वेलफेयर। ठीक है, उन्होंने कहा मेहनत करो, कमाओ और कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए डोनेट करो। As we know कि he was against the idol worship and उन्होंने मैसेज दिया कि God is omnipresent। वर्शिपिंग जो फॉर्म ऑफ आइडल है, उन्होंने कहा उसका कोई यूज नहीं। He also emphasized that differences of caste, creed and gender are no use to attain salvation। ठीक है, उन्होंने कहा हमें किसी तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। He used the term Naam, Dan, and San for the essence of his teaching, which means right worship, welfare of others, and purity of conduct. Okay, and if we compare both Guru Nanak and Kabir, है ना, we found so many similarities in both of them. Let us just compare. Kabir was also against idol worship, है ना, and he was also against idol worship and polytheism also, कि there are many gods. Both of them believe in one God. And he also, both of them also believed in Nirguna Bhakti, है ना, कि God have no shape, no gender. And both of them have criticized the rituals of Hindus and Muslims. Both of them were against the caste discrimination. Okay, and both of them focused कि we should connect to divine by remembering and repeating the divine name, and जो आपके ceremonial baths हैं, sacrifices हैं, idol worship हैं, and both of both of them were against these things। ठीक है, now Mirabai, she was a women devotee of his time, and she is also approximately from the period 15th to 16th centuries. That was a period of your bhakti movement or the bhakti traditions, and उनके बारे में जो biographies have been reconstructed primarily from the bhajans attributed to her, which were transmitted orally for centuries। पहले उनके जो भजन हैं वो orally transmit होते थे और बाद में उनको लिखा गया है। Mirabai is considered amongst the greatest women poetess of the medieval India. She was a Bhakti saint whose life story has been compiled on the basis of the bhajans composed by her, है ना, जैसे उनके बहुत सारे भजन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, है ना। ठीक है, she was born in 1498 in Kutki village of Marwade. She was the only daughter of Ratan Singh Rathor of Mewar.
and she was a Rajput princess, and she was married, and but she defied her husband. Okay, she was married to a prince of Shishodia clan of Mewar, Rajasthan, and she defied her husband and did not submit to the traditional role of wife and mother. Instead, she believes in Krishna, the avatar of Vishnu, and she found him as his beloved. ठीक है? Her in-laws tried to poison her, है ना, वो उन चीजों को पसंद नहीं करते थे, तो they tried to kill her by many ways, ठीक है, by giving her poison, but she escaped from the palace to live in wandering saint. Then she left the palace and joined the saints and kept on moving from one place to another place, composing songs. And it shows her intense expression of emotion. And it was believed by some of the perceptors that some of the people that her preceptor was Raidas. उनके जो गुरु थे वो रैदास थे, a leather worker थे वो, मतलब he belongs to a low caste, ठीक है, and this thing indicated that her defiance of the norms of the caste society, ठीक है, वो caste society में believe नहीं करती थी, she was against the caste system. After rejecting the comforts of her husband's palace, she is supposed to have donned the white robes of widow or a saffron robe of the renouncer. ठीक है, ये क्या माना जाता है कि अपना महल छोड़ने के बाद उन्होंने या तो सफेद कपड़े पहने हैं, ठीक है, और या सेफ्रॉन कपड़े जो आपके साधु संत लोग पहनते हैं, जो कि कहते हैं कि इस दुनिया से बिल्कुल अलग रहते हैं. दो उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, she was recognized as a source of inspiration for centuries. Her songs continue to be sung by women and men, especially those are poor and considered low caste in Gujarat and Rajasthan. ठीक है, उनको जो फॉलो करने वाले लोग थे मोस्टली वो आपके लो कास्ट के लोग थे. She spent most of the time in the meditation of Lord Krishna. And कहते हैं कि in last में she went to the Vrindavan and then to Dwarika. And you can say कि that she was the woman who has challenged the caste system. ठीक है? This is all, children. Let's see what's that. 10:44. Yes, children. Any problem? नो मैम ठीक है मैम. इस चैप्टर के नोट्स इस चैप्टर के नोट्स नहीं भेजे थे? नहीं भेजा पे. नहीं, आई थिंक बट आई हैव सेंड. मुझे लग रहा है आप लोग देख नहीं रहे हो, बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं. तो भेज दूंगा मैं. नहीं मैम यही है. नहीं है, चलो ट्राई सेंड इट. हो सकता है मैंने वहां पर भेज दिया हूँ ममता मैम वगैरह को, और आप लोग को भी. इसकी वीडियो भी नहीं डाली है मैंने इससे पहले वाले इसकी. कोई वीडियो भी मैम मिसिंग है? नहीं. वीडियो सारी डाली है? फिर तो नोट्स भी होने चाहिए बेटा. वीडियोज आर देयर, चेक करो. वैसे मैं डाल दूंगी फिर आज दोबारा से. राइट, आज का जो वर्क है, ये आज की जो वीडियो भेजूंगी ना, इसके साथ ये भी भेज दूंगी. एंड चिल्ड्रन कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स आल्सो. ठीक है, notes I am also sending today. With that, complete question answer. The next chapter is your Vijayanagara and imperial capital Vijayanagara.
So that we'll start on the next term. ठीक है, टाइम इज देयर, तो लेट अस स्टार्ट अबाउट द, मैंने अभी हालांकि उसकी पीपीटी वगैरह नहीं बनाई हुई है, बट वी कैन हैव द इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा पढ़ इस देख लेते हैं कि व्हाट इज देयर इन दैट चैप्टर। ठीक है, ओके चिल्ड्रन, स्टिल टाइम इज देयर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम उसके बाद विजयनगरा लेसन 7 है ना, इसके नोट्स मैं उसी दिन भेज दूंगी और उससे एक दिन बाद भेज दूंगी। अभी मैं आपको लेसन 6 के भेजती हूँ, राइट। विजयनगरा सिटी ऑफ विक्ट्री, मतलब इसका मीनिंग है द सिटी ऑफ विक्ट्री, was the name of both a city as well as an empire। ठीक है, इस सिटी का भी नाम है और एक पूरे एम्पायर का भी नाम है विजयनगर। ओके, it was founded in 1336 by two brothers, or their names were Harihara and Bukka, and in its heydays it is stretched from the river Krishna in the north to the extreme south of the peninsula। The empire was so big। ठीक है, रिवर कृष्णा से लेकर के ये साउथ के पेनिनसुला तक पहुंचता है। विजयनगरा was attacked and plundered in 1565 CE, and though it was completely destroyed in these attacks and in this plundering, till 17th and 18th centuries, it lived with memories of the people living in the Krishna Tungabhadra Goa। People remembered it as Hampi। ठीक है, जो हैम्पी नाम है विजयनगरा का, इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द मदर गॉडेस। ठीक है, वहां पर एक देवी है, उनकी पूजा करी जाती थी, इनका नाम था पंपा देवी, उसी से ही इसका नाम हैम्पी भी लिया जाता है। These traditions, along with the archaeological findings, monuments and inscriptions, help the scholars to rediscover विजयनगरा empire। ठीक है, ये जो इनके ट्रेडिशंस हैं, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, इनके थ्रू ही बाद में इसकी डिस्कवरी हो पाई। द ruins of the Hampi were brought to the light in 1800 CE by an engineer and cartographer named Colin Mackenzie। ठीक है, उन्होंने इसकी सर्च किया है बाद में, though it was established by Harihara and Bukka। ठीक है, पर वंस इस वाज डिस्ट्रॉयड, तो दोबारा से इसके जो इसको फाइंड आउट करा है, ही वाज योर कॉलिन मैकेंजी। ही प्रिपेयर्ड द सर्वे मैप ऑफ दिस साइट। ठीक है, देन ही केम टू नो अबाउट दीज एरियाज। द इंफॉर्मेशन दैट ही received was based on the memories of the priest of Virupaksha temple and shrine of Pampa Devi। ठीक है, तो उसने उसके बाद जब इन चीज़ों को कैसे पता चला उनको उसके बारे में, जब उन्होंने वहाँ पर एक प्रीस्ट थे है ना, उनसे पूछा है कि यहाँ पर पहले क्या था कैसे था। तो जो विरूपाक्षा टेम्पल के और उधर जो पाम्पा देवी के जो प्रीस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारा बातें, विजयनगरा टेम्पल जो पहले कैसे फ्लरिश था, क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पर, इन सब के बारे में बताया। दिस इज द ऑलमोस्ट अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ योर नेक्स्ट लेसन। ओके बेटा, एनी प्रॉब्लम? यस चिल्ड्रन। मैम हाँ बोलो। यस विधि। मैम नहीं समझ में आ गया। आ गया समझ में, चलिए इट्स गुड। चलिए बेटा, नाउ यू कंप्लीट योर क्वेश्चन आंसर्स और नोट्स में आज भेज दूँगी। आई थॉट क्या आई हैव सेंड, कैसे गड़बड़ हुआ। ओके चिल्ड्रन, हैव अ ब्लेस्ड डे, राइट। Okay.